Yeah, I thank God for the today's message that encouraged me in my personal life. मैं आज के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रोत्साहनदायक था। Recently, I was meditating about the fact that on the topic that the rod of God. मैं इन दिनों जिस विषय पर मनन कर रहा था वो है परमेश्वर की लाठी। I want to share two aspects that encourage me. मैं इस विषय के दो पहलू को आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो मुझे प्रोत्साहन किया। First is the rod of God was with the Moses. पहली बात जो है वो है जो परमेश्वर की लाठी थी वो मूसा के साथ था। In Exodus 4:20 it's written, so Moses took his wife and son and put them on a donkey and returned to the land of Egypt, tightly to the rod of God. निर्गमन 4:20 में लिखा हुआ है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को थामे हाथ में लिए हुए लौटा। I had a curiosity to imagine how the Moses rods looks like. मेरे अंदर एक इस बात को कल्पना करने की उत्सुकता थी कि मूसा की लाठी आखिर देखने में कैसे रही होगी। Because I had heard some fables during my childhood that magic rings or stick. क्योंकि बचपन में मैंने ऐसे कई कल्पित कहानियों को सुना जो जादुई छड़ी और जादुई अंगूठी इसके बारे में। If anyone demand anything to the magic rod or lamp, it would provide immediately by its power. कि यदि कोई उस जादुई छड़ी या उस चिराग से कुछ भी मांगता तो वो तुरंत उसकी शक्ति से उसे मिल जाता। But Moses used that rod not used to show magic, but to show the God's power through it. परंतु मूसा ने उस लाठी का उपयोग कोई जादू दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाने के लिए उसका उपयोग किया। In Exodus 7:1, it is written, the first word, the Lord said to Moses that, "See, I have appointed you as my ambassador to Pharaoh." निर्गमन 7 का पहले वचन में पहले हिस्से में कहता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। Yeah, in some of the translations it's also written that I will make you seem like God to Pharaoh. किसी अनुवाद में कहा गया है कि like God यानी कि परमेश्वर सा कहा गया है। Yeah, the Moses was one of the God's ambassador in the Old Covenant. पुरानी वाचा के अंदर मूसा जो था वो परमेश्वर का एक राजदूत था। According to the God command, Moses used the rod to show the power of God in different time and situation. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अलग-अलग समय और परिस्थितियों में मूसा इस लाठी का उपयोग परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाने के लिए करता था। Yeah, Moses had experienced that the power of God through that rod. मूसा ने इस लाठी में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव किया। He never used that rod for his personal benefits or to glorify himself. उसने कभी भी इस लाठी का उपयोग अपने फायदे के लिए या खुद को महिमान्वित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया। In the New Covenant, we said that Paul said about himself in 2 Corinthians 5:20 that we are Christ's ambassador. नई वाचा के अंदर पौलुस अपने आप के बारे में कहता है 2 कुरिन्थियों 5:20 में कि हम मसीह के राजदूत हैं। Yeah, so what was the power of God within Paul as the ambassador of Christ? तो पौलुस के अंदर मसीह के राजदूत होने के नाते पौलुस के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी? However, he had no any physical rod of God like Moses had. हालांकि पौलुस के साथ मूसा के लाठी के समान ऐसी कोई भौतिक लाठी नहीं थी। Rather, he had a power of Holy Spirit which is invisible. बल्कि पौलुस के पास पवित्र आत्मा का शक्ति था जो अदृश्य था। Yeah, and also you see the many his letter had expressed about the power of God. पौलुस ने बहुत से पत्रियों में परमेश्वर के सामर्थ के बारे में वर्णन किया। Yeah, in 1 Corinthians, if you see that chapter 2 verse 4,
it is written that my speech and my preaching are not with enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. पहला कुरिन्थियों 2:4 में कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था. Yeah, and also in 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 also says that our gospel came not unto you in words only, but also in power and in Holy Ghost. पहला थिस्सलुनीकियों 1:5 में हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है. Yeah, one also Paul says in 1 Corinthians chapter 4 verse 20 that the kingdom of God is not just like talking, it's a living by God's power. और एक वचन हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 4:20 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है. If we are the citizen of God's kingdom, we definitely have God's power by our faith. अगर हम परमेश्वर के राज्य के निवासी कहलाते हैं तो हम अपने विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के शक्ति का अनुभव करेंगे. In Ephesians 1 verse 19 also said that I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe him. इफिसियों 1:19 में पौलुस कहता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम इस बात को समझो कि मसीह के सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितने महान है. Paul encouraged Timothy, the 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7 is written that God has not given us the spirit of fear or timidity, but of power, love, and self-discipline. पौलुस ने तिमोथियो को प्रोत्साहित किया 2 तिमोथियो उसका 1:7 में कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. Yesterday, Brother Jack and Sister Annie also shared their experience about the power of God in their life. कल ब्रदर जैक और सिस्टर एमी भी बता रहे थे कि उन्होंने अपनी जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव किया. Yeah, let us experience the power of God within us for His glory. आइए हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने अंदर अनुभव करें परमेश्वर की महिमा के लिए. Second things that encourage me that the rod of God is also used for my correction and to make me humble and to manifest the power of God. दूसरी बात जो मुझे प्रोत्साहित करती है वो है कि परमेश्वर की लाठी जो मेरे सुधार के लिए और मुझे नम्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ताकि परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट किया जा सके. Yeah, and David said in Psalm 23 verse 4, NIV translation said that your rod and your staff they comfort me. भजन संगीता 23:4 में दाऊद कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. Yeah, and Solomon said in Proverbs 13:24 that if you refuse to discipline your son, it proves that you don't love him. For if you love him, you will be prompt to punish him. नीति वचन 13:24 में सुलेमान कहता है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं लगाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है. And also in Proverbs 15:10, NIV translator said that last word 15:10 that the one who hates correction will die. नीति वचन 15:10 के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि जो डांट से बैर रखता है वो अवश्य ही मर जाता है. And we know that a very common verse 2 Timothy chapter 3:16 and 17. 2 Timothy chapter 3:16-17 is written that all scripture are inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us to realize what is wrong in our life. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. दूसरा तिमोथियो 3:16 और 17 जो हम सब जानते हैं वहां पे कहा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Yeah, 17 verses written. In 1 Corinthians chapter 4 verse 21 also says that I shall come to you with a lot of discipline, Paul said to Corinthians. पौलुस पहला कोरिन्थियों 4:21 में कहता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? Yeah, definitely Paul did not want to use physical rod, rather rod of correction. जरूर पौल यहाँ पर कोई भौतिक छड़ी के बारे में नहीं कहता, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा सुधार के वचन के बारे में कहता है। Yesterday Brother Jack also told that he wants to be a good spiritual doctor for correction. कल ब्रदर जैक भी बता रहे थे कि वो एक आत्मिक डॉक्टर बनना चाहते हैं औरों के सुधार के लिए। Let us humbly accept the correction through the word of God and from the godly brother and sister, whatever painful it is. आइए हम नम्रता के साथ परमेश्वर के सुधार को जो उसके वचन के द्वारा और हर एक ईश्वरीय भाई बहनों के द्वारा हमें मिलता है, हम उसे नम्रता से ग्रहण करें, चाहे वो कितना भी दर्दनाक या दर्द देने वाला क्यों ना हो, so that we can experience the power of God within us and for the progress of our spiritual life. ताकि हम हमारे अंदर परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव कर सके जो हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए लाभदायक है। Yeah, that's why I want to accept all type of correction for my life, for my betterment of spiritual progress. और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर एक परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं, ताकि मेरे आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ सकूं। Amen. Thank you, brother. आमीन। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। प्रभु ने ये अच्छा अवसर हमारे जीवन में दिया और हम कई सालों से सोच रहे थे कि एक ऑफलाइन चर्च अटेंड करने के लिए, और हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन ही थे, और आप लोगों ने एज ए परिवार हम लोगों को एक्सेप्ट किया। हम इतने दूर थे, हमने कभी नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो प्यार और आपके जो प्रेयर्स हमारे साथ रहा, हम इधर उधर नहीं भटके। और स्पेशली प्रभु को मैं अपने स्वर्गीय पिता को एक बार धन्यवाद दूंगा कि उसने अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत कार्य किया। हमारा देखा जाए तो हमारा जीवन एक मसीह परिवार में हुआ है, लेकिन कभी भी वचन को एज ए सीरियस कभी नहीं लिया हमने, और सिंपल एक एज ए क्रिश्चियन जो एक रेगुलर क्रिश्चियन होता है उसी रीति से हम अपने जीवन चलाते रहे। लेकिन प्रभु ने जब हमें पकड़ा तो अच्छे से पकड़ा, और प्रभु ने बहुत सालों से हमारे जीवन में कई चीज़ों को लेके जो आशंकाएं या फिर कुछ प्रश्न हमारे जीवन में दिए, वो प्रश्न हमारे जीवन में मतलब वो मतलब ऐसे कुछ एकदम से नहीं आया, कुछ सालों से चल रहे थे। लेकिन स्पेशली मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहूँगा कि मुझे एक ऐसा पत्नी दिया जिसने मुझे स्पिरिचुअल बहुत आगे बढ़ाया, और वो हरदम सीरियस रही। मैं इतना सीरियस नहीं रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फुली बचाया हुआ हूँ, एक विश्वासी हूँ जो मुझे एक बाय डिफॉल्ट या एक उस चीज़ के लिए हकदार हूँ। और मैं कभी भी अपना आप को गलत नहीं समझता था। मेरे जीवन में कहीं कमी घटी थी और मैं सिर्फ एक स्टेटस पाने के पीछे बहुत भागता था और एक स्पिरिचुअली को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। लेकिन प्रभु ने जब अपने बच्चों से बात करना शुरू किया तो प्रभु ने मेरे को एक नया रास्ता दिखाया, प्रभु ने मुझे संभाला, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के बीच में हूँ। और हमारी कई सालों से एक तमन्ना थी कि आप सबसे मिले। और एक वचन है जो मुझे बहुत जो है हरदम कभी कभी जब मेरे को ये वचन दिखता है तो मैं इसको अपने पर ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये वचन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि प्रभु ने मुझे सबसे पहले नम्र होना सिखाया, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सिखाया, और उस चीज को सिखाया कि पाप के बारे में बहुत एक डिटेल वे में मुझे बताया। वो है पहला यूहन्ना उस 2:1, उसमें ऐसा है कि मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:1 है, मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो,
और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। जब मैंने ये वर्ड्स पढ़ा था तो मुझे इतना समझ में नहीं आया था कि ये किस लिए है, लेकिन रेगुलर ये वर्ड्स मेरे जीवन में आता रहा और मैं इस चीज को समझता रहा कि मुझे एक बालकों के समान अपना जीवन को नम्र करना पड़ेगा और जो भी वचन है उसको सीरियसली मुझे लेना पड़ेगा। और मैं इस वचन को सीरियसली लेता रहा और पाप के बारे में और अधिक अधिक पढ़ता रहा और भाई जैक के जितने भी मैसेजेस है उनको मैं सुनता रहा। लेकिन मैं हरदम ये सोचता था कि सिर्फ इसको याद करने से या मैं कुछ स्टेप्स करने से शायद मैं इन चीज़ों से निकल पाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और प्रभु ने जो अनुग्रह दिया कि उन चीज़ों को समझने में, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझने में, और मेरे जीवन में ये आशा दी कि प्रभु ही है और जो मेरे आसपास है लोग, वो मुझे कभी भी अपने पाप से, मेरे पापों से कभी मुझे छुड़ा नहीं सकते, वो मुझे कभी करेक्ट नहीं कर सकते और मुझे इन चीज़ों के बारे में कभी मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं गलत हूँ या सही। और करेक्शन को लेने में मैं सबसे पीछे था, मैं किसी की बात को बहुत जल्दी बुरा मान जाता था और मैं हरदम यही सोचता था कि मुझे इतने साल हो गए विश्वास में, ये ब्रदर तो अभी अभी आए हैं, तो मतलब मेरे को लगता था कि मैं बहुत ही एक हायर पोजीशन में हूँ। और लेकिन प्रभु ने मुझे जब छुआ तो मेरे को उस सिचुएशन पे ला दिया कि मुझे अपने पाप दिखने लगे। और मेरे सबसे बड़ा था कि मैं लोगों से बहुत नम्र होके बात नहीं करता था, हरदम ऐसा बिहेव करता था कि आई नो एवरीथिंग, इवन इवन विथ माय वाइफ आल्सो, कि इसको कुछ नहीं पता। टेक्निकली मैं इसको हरदम कुछ ना कुछ कहता रहता था और मैं हंसता था और मैं देखता था कि जब तक गलती कर रही है करने दो, फिर आई एंजॉय दैट मिस्टेक। लेकिन जब लेकिन प्रभु ने जब पकड़ा तो अच्छे से पकड़ा, जो मैं हरदम कहता हूँ, और मुझे समझाया कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और मैं अभी भी कुछ दिनों से कुछ चीज़ों को लेके, कई चीज़ों को लेके मैं कुछ परेशान था, तो मुझे कई बार डिस्टर्ब करती थी। तो लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रभु ने उन चीज़ों से निकाला मेरे मन को, जो कठोर मन था और हर बात पे जो गुस्सा आता था। एंड आई ऑलवेज रिवेंज लेने का एक मेरे मन में हरदम रहता था, क्योंकि मैं एक आईटी फील्ड से था, तो वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता था कि मेरे जूनियर और मेरे सीनियर मुझे किसी रीति से भी कुछ परेशान करते थे, तो मन ही मन में यही बैठा रहता था कि एक समय आने दे, तेरे को मैं बताता हूँ। यही मेरा एक मन हरदम रहता था। तो प्रभु ने मुझे जो पकड़ा तो अच्छे से ही पकड़ा और प्रभु ने उस चीज को मेरी लाइफ से चेंज किया। मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ कई बार कि मुझे प्रभु ने बदला, और ये बहुत डिफिकल्ट लगता था और मेरा अविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था, प्रभु को मानता था या प्रभु को जानता था, तब भी मैं विश्वास नहीं करता था कि ये चीज प्रभु के अनुग्रह से फुलफिल हो सकती थी। मेरा हरदम अपना ही एक माइंड सेटअप अलग से चलता था, प्रेयर करता था एवरीथिंग, बट वचन पे जो विश्वास था ना, वो मेरे लाइफ में नहीं था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पिछले दिनों में प्रभु ने जो मुझे से बात की वचनों के द्वारा, और निरंतर मैं, और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन बाइबल के वचन को पढ़ना शुरू किया तो मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए, और ये सच्चाई है। और मैं एक दिन भी अब मैं उस वचन को ना पढ़े अपने जीवन को नहीं निकाल सकता, वो सिचुएशन मेरी लाइफ में अब आ चुकी है। और मुझे अब इस चीज का भी डर है कि मैं जो लोगों से बात करता हूँ या जो मैं करता हूँ, उसका जवाब मुझे एक दिन ऊपर जाके देना पड़ेगा, उसका मैं ही मतलब उस चीज के लिए हकदार हूँ, उस सजा के लिए, अगर मैंने कोई गलत किया तो। और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम लोग एज ए फैमिली जयपुर में बहुत अकेले हैं। आज मैं थोड़ा सा अच्छा लगा कि आज आप परिवार के साथ एक आराधना करने के लिए, जो एक हमारी दिली तमन्ना थी। लेकिन आने वाले दिनों में भी प्रभु ऐसा कार्य करे वहाँ जयपुर में, क्या पता प्रभु हम लोगों को तैयार कर रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं कमी घटी जो हमें दिखता नहीं है। एज ए चर्च आप लोग हमारे जीवन में कभी भी कोई गलत दिखे, हम करेक्शन लेने को तैयार है। यहाँ के एल्डर्स के लिए तो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम एक नए हैं, तो हम कभी भी उस जयपुर शहर में कोई भी सीएफसी के लिए या कोई हमारे जैसे सोच रखने वाले, जो हमारे से जैसे भूख और प्यास से लोग हैं जो वचन जानना चाहते हैं, उनके लिए हम कभी भी ऑब्स्टेकल नहीं बने हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु की नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमेशा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। और आने वाले दिनों में हम वहाँ पे भी एक सीएफसी चर्च या कलीसिया हो सके, हम इसके लिए प्रार्थना निवेदन आप लोगों से करते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको महिमा और अनुग्रह आशीष दे। धन्यवाद।
मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। मुझे ना ये स्टेज हैंडल नहीं होता, यहाँ आती हूँ तो आई कांट स्पीक प्रॉपर्ली। दैट्स द रीजन आई जस्ट वांटेड टू टेल डैनी दैट आई कांट स्पीक इन पब्लिक। I'm really thankful to God for giving me this opportunity to stand in front of all of you. CFC हमारे लिए कोई by chance experience नहीं था. It's a miracle, a big miracle of our life. I don't know कि being in new covenant आप लोग कितना इसकी importance को समझते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का एक बहुत लंबा टाइम whole covenant में गया है, तो we understand. तो हमारे चर्च में क्या होता था, in our old church हमेशा ना एक ऑल्टर कॉलिंग होती थी ऑन 31st ऑफ दिसंबर। तो हम जब आगे स्टेज पे जाते थे तो हमको एक है ना वर्स मिलता था जो हम लोग ऐसा मानते थे कि इट्स अ वर्स फॉर आवर लाइफ। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग 2020 में हमने CFC ज्वाइन किया है और 2019 में गॉड ने ये वर्स दिया था मुझको, Hebrew 8:13, in speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete, and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So I asked everyone, मुझे verse बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो मैंने सबसे चर्च में पूछा कि इसका मतलब क्या है, what is the old covenant and what is the new covenant God is going to establish with me. But he made this true in the next year in my life, and now I am the part of this new covenant. So I'm really grateful to God, and now I understand the meaning of how it is important for us to know the truth, because truth will set us free. So after knowing the Bible, after hearing a lot of sermons from Brother Zach and from all the elders, now I know that I'm not in burden anymore. No one can deceive me because I know the truth, and truth will set me free forever. So thank you so much for welcoming us. एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहूंगी कि मैं CFC में कैसे आई, इस बारे में कि स्पिरिचुअली हम लोग अपने जो पुराने चर्च में थे उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज all the messages were related to miracles only, healing only. तो sin से overcome करना, sin पे victory करना कभी भी हमारे चर्च का कभी कोई main message नहीं रहा था। तो इसलिए हमारी लाइफ में हमेशा एक एम्प्टीनेस थी। कुछ भी चर्च कितना भी अटेंड कर लो, जब घर जाते थे कभी भी फुलफिल्ड होके नहीं जाते थे। तो एक दिन सुबह सुबह मेरा एक हैबिट था, कैब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होने की वजह से 5:30 कैब आती है, तो 5:30 to 6 में बैठ के बाइबल स्टडी करती हूँ। तो उस टाइम पे क्योंकि इतना गॉड ने वो वेल, वो पर्दा आपकी आंखों के ऊपर से नहीं हटाया था, तो बाइबल ऑल्सो जस्ट लाइक वर्स रीडिंग होता था, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता था बाइबल थ्रू के। तो फिर मैंने सोचा कि कोई तो एक ऐसा बाइबल ऐप होना चाहिए, किसी ने तो बनाया होगा बाइबल स्टडी के लिए। तो ऐसे मैंने प्ले स्टोर में सर्च किया तो ये मुझे जैक अंकल का CFC बाइबल स्टडी ऐप मिला। क्यों मैंने उसको डाउनलोड किया, क्योंकि जितने भी ऐप्स मौजूद थे उसमें उसको हाईएस्ट रेटिंग मिली हुई थी। तो आई थॉट मे बी इसने कुछ तो अच्छा किया ही होगा, तो उसको ऐप को डाउनलोड किया और फर्स्ट मैंने उनका वचन सुना, एंड दैट वचन जो सर्मन था वो टाइडिंग पे था कि ना कि सबमिट योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, नॉट द 10%, गॉड इज मोर लुकिंग फॉर अ चीयरफुल गिवर। तो वो चीज मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने आज तक पहले क्यों नहीं सुना, व्हाई दिस इज आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दैट मेड मी वेरी मच क्यूरियस। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही ऐसा बात बोला है मुझे आज, जिसको मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुना। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम मोर, the more and more I started to listening him, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये मैंने अपनी पूरे 35 years की क्रिश्चियन लाइफ में मैंने इसको पहले कभी नहीं सुना। So then God, at that right moment, God opened my eyes and given me the assurance that now what I am listening is the truth. तो उसको फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपने शाइन को बताया कि आप इसको सुनो, ये जो बोल रहे हैं ये बहुत अलग है, ये पहले अपन ने नहीं सुना है। फिर शाइन ने अपने पर्सनल टाइम में उसको सुनना शुरू किया। देन वी डिसाइडेड कि जब भी हम रात में सोने जाते थे उससे पहले हम अंकल जैक का एक सर्मन प्ले करते थे। तो धीरे धीरे गॉड ने हमको और क्लियर किया कि फिर जब हम अपने चर्च में जाते थे, व्हेन वी, क्योंकि वो बाइबल स्टडी ऐप था हमारे पास, हमको उसी रेफरेंस से जब चर्च में सिखाया जाता था, हम घर आके उसी का ही रेफरेंस CFC ऐप से निकालते थे। तो बहुत ज्यादा हमको टीचिंग डिफरेंस समझ में आ गया कि हमको बहुत गलत शिक्षा के हम लोग उसमें है।
फिर देन वी हैव स्टार्टेड प्रेइंग। हमने CFC बैंगलोर पे कंसल्ट किया, वहां पे उनसे पूछा कि कोई जयपुर में आपकी कलीसिया है क्या? तो उन्होंने, सेबेस्टियन ब्रदर थे, उन्होंने हमारा फोन उठाया तो उसने कहा था कि जयपुर में कोई कलीसिया तो नहीं है, बट मे बी आप हो सकते हो जिससे एक नई कलीसिया बने। तो उसके बाद फिर क्योंकि मैंने अपने आप को सब्सक्राइब कर रखा था उसके वेबसाइट पे, तो एक दिन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो हुआ, मैंने उसको अटेंड किया। और उस वक्त एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो नए लोग आते थे उनसे ना इंट्रोडक्शन होता था। तो जब हुआ तो उसमें मैंने अपना कंसर्न रेज किया कि CFC में हमारी कोई कलीसिया नहीं है। तब अब्बू अंकल, जयसुराज अंकल और सिस्टर राधिका ने एक ही टाइम पे मेरे को मैसेज किया कि ना यू कैन ज्वाइन Navi Mumbai CFC. That's the another miracle, क्योंकि वो एक ग्लोबल मीटिंग थी। We have CFC in Delhi, which is the nearest to Jaipur, और अदर जगहों पे भी थी, but why only Navi Mumbai CFC? Because God has already made a plan for us कि हमको next step हमारा कहाँ होना है। तो फिर नेक्स्ट डे राधिका ने मुझसे वो Zoom ID शेयर किया, और उसके बाद हम लोग CFC का पार्ट बन गए। So I really want to thank अब्बू अंकल, लिसी आंटी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहे थे, एंड they really counseled us, and like a family I really want to thank Biju and Amy for making a big difference in my life. They are really good friends. They have counseled us in every walk of our life, and we are grateful to Jesuraj uncle. He is another parent, like father for us in our spiritual life. So all of you who have contributed immensely in our spiritual life, we are really grateful to you. Thank you so much.